Good morning, dear students. Yesterday I have shared you a video in which we have discussed how to find the determinant of square matrices of order 3. Now today we will do some questions based on it. This is question number 5 of exercise 4.1. In finding the determinant, expand it by that row which has maximum number of zeros. In this, there is no zero in any row, so we can expand it by any of the 3 rows or by any of the 3 columns. If we expand it by row 1, expand by R1, this is 3, then leave this first रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करके जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है 1 - 2 3 1। देन ऑल्टरनेटली साइन चलता है। कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, देन सेकेंड टर्म नेगेटिव एंड देन थर्ड टर्म पॉजिटिव। अगर आप सेकेंड रो से एक्सपेंड करेंगे देन फर्स्ट टर्म नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। थर्ड रो से एक्सपेंशन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। इसके बाद हमारा ये सेकेंड एलिमेंट है, लेकिन हमारे सेकेंड एलिमेंट से पहले माइनस साइन लगाना है हमने। सो माइनस ऑफ -4। बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। इफ दिस इज हैविंग द एलिमेंट इज हैविंग द नेगेटिव साइन, so you should be careful at this point because this is the second term a12 and it should have negative sign, so you have to put this sign also. Most of you mistake here, they simply write -4. Now leave this second row and this first row and second column. Remaining elements are 1 -2 2 1. Then next element is 5, a13, so it is with plus sign, so +5, and leave the first row and third column. You will have 1 1 2 3. Find it. You will find this determinant, multiply diagonal elements and subtract the product of diagonal elements from it. You will have 1 minus of -6, so it becomes +6, then minus +4, again it is 1 minus of -4, that is +4, then +5, 3 minus 2, so it becomes 6 + 1 7, 3s are 21, 4 + 1 5, 4s are 20, and 3 minus 2 is 1 plus 5, so the answer is 46. So this is the determinant of this square matrix. We can also find determinant by Sarus method. This is not given in your NCERT, but it is given in R.D. Sharma, so you can use that method also. Let us do one question with the help of that. It is third part. 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0. In Sarus method, we write the determinant as it is, and after that write the first 2 columns 0 -1 -2 1 0 3. The diagonal here of 3 elements diagonally like this, similarly here like this, and similarly here. इसके आगे आपको 3 एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं डायगोनल बनाने पर, 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो आगे नहीं बढ़ना है हमें, और इन तीनों का प्रोडक्ट करना है हमें। इसका प्रोडक्ट 0 प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट 6, इन तीनों का प्रोडक्ट -6, and start drawing the diagonal from the bottom left
most bottom, you will have this. Subtract the product of these diagonals elements. It is -4. So बॉटम से जो हमने डायगोनल ड्रॉ करा है, इन उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 0 आ गया. तीनों एलिमेंट्स 0 है यहाँ, तो 0 0 एंड 0 and 6 minus 6 is 0, so our answer is 0. The determinant of a matrix is 0, then that matrix is called a singular matrix. Singular matrix is a square matrix A is called singular if determinant A is 0. उसका determinant अगर 0 है then it is called singular, otherwise it is called non-singular matrix. जैसे ये हमारी मैट्रिक्स थी, अगर इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म, इस एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है. यहाँ पर कुछ बच्चे इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉडुलस ए. इट इज़ नॉट मॉडुलस, इट इज़ डिटर्मिनेंट ए. नाउ yesterday we have discussed few properties also. The first one is determinant ka is equal to k raised to the power n determinant a. जैसे हमने k की जगह 2 लिख दिया है. k is some scalar, so if we replace k by 2 it will be determinant 2a equal 2 to the power n into determinant a, where in n is the order of the matrix. इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए. जैसे अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 1 2 3 4, 4 minus 6 that is -2. अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज विल बी 1 2 3 4. This is A transpose. This is matrix A. So its determinant of A transpose will be determinant 1 3 2 4. Again it is 4 minus 6, that is -2. It means determinant A transpose is equal to determinant A. थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास determinant AB is equal to determinant A into determinant B, and the fourth property is determinant A to the power n is equal to determinant A raised to the power n. इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं इजीली. सपोज n 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट a स्क्वायर. इस a स्क्वायर को लिखा जा सकता है a डॉट a. अब इसको थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करें तो इट बिकम्स डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a. इट बिकम्स डिटर्मिनेंट a स्क्वायर. इसी तरह से डिटर्मिनेंट a क्यूब को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इंटू a. अगेन थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इट विल बी डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a. एंड डिटर्मिनेंट a स्क्वायर वी हैव जस्ट प्रूव डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a, दैट इज डिटर्मिनेंट a टू द पावर. सो इन जनरल वी कैन राइट this determinant a raised to the power n is equal to determinant a to the power n. Now we do one question based on the first property, that is question number 4th. This is very important property. In 1 marks questions it has been asked many times in the board exam, so it is very important property. We have a matrix is 1 0 1 0 1 2 0 0 4. We have to show that determinant 3a is equal to 27 determinant a. This we have to show. That is, we have to prove the first property. You can see, since this matrix is having 2 zeros in the first column,
So we can expand it by the first column. So x is 1 0 0 0 1 0 1 2 4. Since the first column is having two zeros, so we can expand it by C1, expand by C1. So what will happen? 1 फर्स्ट एलिमेंट, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. देन नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 0, इसको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे. तो 0 1 0 4, देन प्लस 0, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे जिसमें ये एलिमेंट लाई कर रहा है और बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज 0 1 1 2. अब ये डिटर्मिनेंट कुछ भी हो, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये कुछ भी हो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी. इसीलिए हम उस रो या उस कॉलम को प्रेफर करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, जिससे कि उसमें कैलकुलेशन वर्क कम हो जाए. देन इट बिकम्स 4 minus 0, so the value of this determinant is 4. Now left hand side is 3a, determinant 3a. So first we find 3a. 3a will be 3 into 1 0 1 0 1 2 0 0 4. That is multiply each element by 3. यहाँ पर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में फ़र्क ये भी है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है. डिटर्मिनेंट में हम एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते सकते हैं. तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 3 0 3 0 3 6 0 0 12. Now determinant 3a. Determinant 3a means you have to find the determinant of this matrix 0 3 6 0 0 12. ध्यान देंगे जब आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो हम ये दो बार्स में लगाते हैं और मैट्रिसेस में ये एक तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. इसको भी हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन कर दें, थर्ड रो से भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें भी दो जीरोज हैं. अगर हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जिसमें ये एलिमेंट लाई कर रहा है 0 12. बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी इसमें, तो ये हो गया हमारे पास 36 और ये 0. 36 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 दैट इज 108. अब हमारा जो राइट हैंड साइड था ये हमारे पास था 27 डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए हम पहले निकाल चुके हैं 4, दैट इज 27 into 4, so it becomes 108. So we have proved that this given statement that determinant 3a is equal to 27 determinant a. This 27 can be written as 3 cube into determinant a. तो ये वो ही फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बन गई कि डिटर्मिनेंट के की जगह आपके पास 3 है, यहाँ ये 3 आ गया, और n हमारा ऑर्डर था, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था, तो ये ऊपर 3 आ गया. तो ये एक तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया है हमारे पास. नाउ दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस फॉर टुडे. ट्राई टू सॉल्व दिस. थैंक